تو فنش پروڈکٹس ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے یا را مٹیریل پہ ہی ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ دیکھیں انڈیا میں جتنا بھی ہمارے ماربلس بیسڈ پروڈکٹس ہیں یا آنکس کے گرین آنکس کے وہ تو آپ کو فنش پروڈکٹس کی شکل میں ملیں گے. یعنی جس طرح کی بہت پاپولر ہے وہاں پر مختلف قسم کے جانور ہاتھی خاص طور پر, اور میں تو خود حیران ہوا جبکہ اتنے لارج سائز ایلیفنٹس کو انہوں نے وہاں پر ڈسپلے کیا اور وہ بڑی ان کی یعنی آپ دیکھیں کہ ماربل کے جتنے بھی پروڈکٹس فنش پروڈکٹس تھے وہ سب اس کی سیل ہو گئی اور کوئی بھی چیز واپس ہمیں نہ لینی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہاں پر اس کو بڑی ضرورت ہے ماربل کی, جو فنشڈ ماربل ہے یعنی پالشڈ ماربل. ایک تو ہے نا آپ کا ماربل راک جو بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, لیکن زیادہ جو اچھی بات ہے انڈیا میں کہ انہیں فنشڈ ماربل کی بہت وہاں پر ڈیمانڈ ہے, اور چونکہ یہاں پر یہ دوسرا گیٹ کھل گیا ہے بازا کا, اس لیے بڑی آسانی سے اس قسم کی جو بھاری چیزیں ہیں وہ آسانی سے بائی روڈ ٹرانسپورٹ ہو سکیں گی. رائٹ. طارق پوری صاحب, پریزیڈنٹ ٹی ریپ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیا سرف ایکسل نیل, لیمو اور صابن. طارق پوری صاحب نے کہا کہ یہاں سے فنش پروڈکٹ ہم ایکسپورٹ ہمیں کرنی چاہیے, ہم کرتے ہیں, اور انڈیا میں کافی انہوں نے ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا سے ظاہر ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, فارما کے لیے کافی بڑی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں. انڈیا سے جو را مٹیریل آتا ہے وہ ظاہر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از ون تھنگ جو کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے رہیں, یہاں سے بھی اگر را مٹیریل ان کی انڈسٹری کے لیے جاتا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل, یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے پاکستان اسٹیل کے لیے آئرن اور جو ہے وہ آپ کے نیبرہڈ میں موجود تھی, لیکن آپ آسٹریلیا سے امپورٹ کرتے رہے, وچ واز ان اکنامیکل پروپوزیشن. ابھی بھی آپ کو اکنامک بینیفٹ اگر ڈیرائیو ہوتا ہے ہندوستان سے امپورٹ کرنے پہ را مٹیریل, جس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی اور ٹائم فیکٹر بھی اس پہ کم انوالو ہوگا, تو جو یہاں مینوفیکچرر اس کی کاسٹ جو ہے پروڈکٹ کی وہ کم ہو جائے گی. ہی ول بی میکنگ مور منی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں ہی فائدہ ہے ایکسپورٹ کرنے میں. آپ کو یہ صرف یہ جو ہے بعض چیزوں میں تو را مٹیریل ہے, جیسے میڈیسن ہے اس کی آپ کے اس کی فیڈ میں, لیکن ہر چیز میں آپ کو بینیفٹ ملے گا جبکہ آپ ویلیو ایڈ کریں گے اپنی پروڈکٹ میں. یہاں پہ ایک سجیشن میرا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے کموڈیٹیز کا ٹریڈ کریں اوور لینڈ روٹ کے ذریعے, لیکن you should also look into the possibility کہ بجائے آپ دبئی میں جا کے انویسٹ کریں, آپ ایک جوائنٹ وینچر ہندوستان کے ساتھ ہندوستان میں جا کے قائم کریں یا پاکستان میں قائم کریں. لیکن پاکستان کی تجارت جو ابھی ہو رہی ہے صرف واگا اور اٹاری کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ مونا باؤ جودھپور از مور کلوزر ٹو کراچی دین ٹو بامبے. تو آپ کا ہنٹرلینڈ بنتا کیا ہے؟ پورا گجرات. تو اگر آپ اس پاسبلٹی کو دیکھیں تو آپ کی مارکیٹ لوکلائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریجنل مارکیٹ, ایک نیا ریجن آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک نیا ریجن. آپ نے کھوکھرپا منابع کی بات کی. دیکھ صاحب کاٹن امپورٹ کرتے ہیں گجرات کی, اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہ کاٹن بیلٹ کہا جاتا ہے. کاٹن ہم امپورٹ کرتے رہے, لیکن انڈیا کی طرف سے ریسٹرکشنز بھی لگیں جب بھی کاٹن پرائسز اوپر گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کھوکھرپا منابع یہ جو لینڈ روٹ ہے اس کو اگر زیادہ پروموٹ کیا جائے تو خاص طور پہ گجرات سے جو ہماری ٹریڈ ہے؟ بہت صحیح سوال آپ نے کہا, اور اس کا یہ ہے کہ جب یہ واگا بارڈر پہ ٹی سی پی کھلا تھا ہمارا انٹیگریٹڈ کارگو پوسٹ, اسی وقت اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ہم مانوبائی اور کھوکھرپار بھی مانوبائی اینڈ کھوکھرپار بھی کھول رہے ہیں سندھ میں, کیونکہ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ پنجاب کا بارڈر تو آپ نے کھول دیا اور سندھ کا نہیں کھول رہا ہے, حالانکہ گجرات سے جو لاجسٹکس ہیں وہ اس بارڈر کے تھرو بنتی ہیں. تو یہ فیز وائز سب کھلیں گی, یہی ہمارے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر آپ نے ہاف ہینڈیڈلی کیا تو وہ ریزلٹ نہیں ملیں گے. اور اس میں میں نے بہت میں آپ کو
तीन चीजें जल्दी जल्दी क्लियर कर दूं। स्टेट बैंक ब्रांचेस खोलने की इजाजत दे दी है और वो भी हमारे यहाँ खोल रहे हैं और हम भी वहाँ पे खोल रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 3-4 मीटिंग हो गई, गवर्नर साहब भी गए थे। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट वहाँ अलाउ कर दिया है, हमने ऑलरेडी करा हुआ, हमारे यहाँ कोई स्टेट बैंक का कोई रेगुलेशन नहीं है। ये सब चीजें डोल ड्रम में पड़ी हुई थी, लेकिन अब हमने इनको एक्टिवेट किया है कि हम ट्रूली चाहते हैं कि इंडिया के साथ आजादाना तजारत हो। अभी मैं दुबई से कल परसों आया हूँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट एम्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डिसीजन ये हुआ है कि आने वाले वक्त में जो ट्रेड है 10, 20, 30, 40 सालों में वो चाइना, इंडिया और टर्की है, ये एशिया। तो हमें इसके बेनिफिट होने का पाकिस्तान एंड सम फार ईस्टर्न कंट्रीज का नाम इंडोनेशिया। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इसी हवाले से ज़कीर साहब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और यूएसए के हवाले से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी काफ़ी ऐसे से हम देख रहे हैं कि निगलेक्ट हो गई है और काफ़ी कंसर्न्स भी इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का BIT साइन हुआ है, श्रीलंका के साथ भी है, टर्की के साथ भी है। पाकिस्तान BIT साइन आप समझते हैं कि पाकिस्तान को करना चाहिए, खासतौर पर रीजनल कंट्रीज के साथ? देखें, ये 100% पाकिस्तान को करना चाहिए। और एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि हमें अपने जो जूस पॉवर्टी पे हमारे लोग अब चले गए हैं और अब हमने इंडस्ट्रियलाइज अपने आप को न किया, तो ये क्राइम आप खत्म नहीं कर सकते। बेसिक चीजों पे लोग नहीं जा रहे कि भाई ये क्राइम जो है वो क्यों हो रहा है। एक तो क्राइम अगर पॉलिटिकली है तो वो तो रोका जा सकता है, लेकिन अगर एक भूखे का क्राइम है तो वो नहीं रोका जा सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको करना है। अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का रियलिटी में तस्वुर लाना है और वो आप सिर्फ इंडिया से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री का बड़ा तस्वुर है। आप पूरा गुजरात सेक्टर देखें, उनका आप साउथ एरिया देखें, हर जगह पर उन्होंने पहले स्मॉल से शुरू किया, टेक्नोलॉजी उनके पास है। बुक्स आप उनकी उठा के देखें, स्मॉल और मीडियम पे इतनी मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। आज भी वीविंग की कैलकुलेशन सेंट पॉल को वहीं से आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं। आई टोटली एग्री कि हमारे कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन टाइम बिंग अगर उसको साथ साथ हम डेवलप करते रहें तो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बहुत बेहतरी है। साहब, जो पॉलिटिकल मामला हैं उनको अगर हम तय कर लें, जैसे कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यूसुफ गिलानी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान का मुकद्दर सिर्फ गुर्बत और डिजीज नहीं है, पॉवर्टी और डिजीज जो हम देखते रहे हैं एक अहम इशू है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस इशू को जो हाईलाइट किया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि भाई पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर जो है और इन गुर्बत के इस जो सतह पे जो आप पहुंच गए हैं या जिन बीमारियों में आप मुब्तला उसका इलाज नहीं कर सकते अपने वहाँ के 40% जो है आपकी जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान साउथ एशिया की जो बिलो पॉवर्टी लेवल इस वक्त जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने में कोई, लेकिन बुनियादी बात यह है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों को ये फैसला करना है क्या वो बैटल ऑफ कैलिंगा चाहते हैं या पीस एफर्ट चाहते हैं इस पूरे रीजन में। देखिए, अशोक के ज़माने में इतने खून बहा, फिर वो एक तारीख बदल गई, पूरा थिंकिंग बदल गई साउथ एशिया की। लेकिन आप हमारा ज़माने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जहन को तब्दील करें और इस बात पे एग्री करें जो शुरू में बात की कि आप स्टेक होल्डर्स बने अपने लोगों के फ्यूचर के लिए। ये समझते हैं कि जहन तब्दील हुआ इसलिए कि अगर हम 2007 की बात करें, समझौता एक्सप्रेस का इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, फिर 2008 में मुंबई अटैक्स की बात हुई, फिर अगर 1999 की बात करें कारगिल का जो मामला था, और फिर इंडियन पार्लियामेंट में जो हमला था, मामला तो हम देखते रहे कि होते रहे। क्या अब जहन चेंज हुए हैं? आप समझते हैं कि नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड? देखिए, मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ और ये कहानी शुरू हुई है अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 तक, और मैं आ गया। जितनी तेजी से प्रोग्रेस हुई है वो पिछले 60 सालों में नहीं हुई। वो फासले जो 60 सालों में नहीं तय हो सके थे, तो इस एक साल में हमने तय करे। मनमोहन सिंह साहब से भी मिला हूँ, आनंद शर्मा साहब से भी मिला हूँ, जो चिदम्बरम साहब उनके हैं, उनके साथ भी मैं वाघा बॉर्डर पे था। सबके बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि लेट्स डू बिजनेस। हमने 63 साल में सब कुछ तो कर लिया और सब कुछ आजमा लिया, जंगें भी लड़ ली, कारगिल भी हो गया, बॉम्बे का भी वाकया हो गया, बट व्हाट वी गॉट आउट ऑफ इट? नथिंग। अब
से के पीस से और तिजारत से ये कार्ड बच गया, इसको खेल के देख लेते जो हैं। तिजारत और की बात ये आती प्राइवेट सेक्टर का भी यही जहन है और ऊपर की क़यादत का भी यही है। पाकिस्तान में भी मनमोहन सिंह के बाद जब मोहाली टेस्ट मैच में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनके प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया था कि नहीं अब हमने करना। और फिर सदर पाकिस्तान ने उसमें जो पेशरफ दिखी और अभी वो गए थे अजमेर शरीफ में जो बातें कर आए, उसके बाद फिर हम गए तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट है। इफ एंड बट करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखें कि आने वाली नस्ल जो है हमें उसको हम रीजनल ट्रेड में 2 अहम ट्रेडिंग पार्टनर अगर दे दें तो आपको अंदाजा, डायरिया की जो रॉ मटेरियल है 90% हम इंडिया से मंगा रहे हैं, पाकिस्तान में 90%। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं जकीर साहब, तो बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जितनी भी है उसमें 80% एक्सपोर्ट उनकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। कॉटन वो ग्रो नहीं करते, उनकी कॉटन की जो इंपोर्ट है वो इंडिया से होती है, इंडिया से वो मशीनरी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से इंपोर्ट करके बांग्लादेश एक इकोनॉमिकली साउंड कंट्री बनता जा रहा है। पाकिस्तान भी आप समझते हैं कि इस मॉडल को देखेगा? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की जहाँ तक ताल्लुक है वो तो एक्सेस मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेस मार्केट में, हाँ, एक्सेस मार्केट एक बात। दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि हम टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकते एज एक्सपोर्टर। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश ने पड़ोसी से फायदा उठाया है। हम पड़ोसी से फायदा उठाना नहीं चाहते थे अब तक, अल्लाह का करम है कि हमारी समझ में आ गई, क्योंकि पड़ोसी से ही फायदा उठा सकते हैं। बहुत दूर जाने से बहुत देर हो गई। हमें अपनी मंजिल मुकर्रर करनी है, डायरेक्शन बनानी है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने अयूब खान के ज़माने की इंडस्ट्री को आज तक खा रहे हैं बेचकर। हमारी प्रॉब्लम जो टेक्निकली ये है कि वो पंचशाला मंसूबा जो हम बनाते थे, 2 बनाए हमने, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 68 से वो 58 से 68 का हमने वो देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर हुआ और रोज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती थी। उसके बाद हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम पंचशाला मंसूबे भूल गए और पिछले तकरीबन 30-40 साल से हैपरजेड वे में पॉलिसी बनाते। हमें एक्टिव होना पड़ेगा। शिव साहब, वेरी क्विकली आप बताइए कि अब ये जो अमन की आशा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस सेकंड हो रही है, इन द डेज टू कम, इन इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंस होगी, किस हद तक आप समझते हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी होगी? देखिए, वो जो आपके जो टैरिफ बैरियर्स है ना, जब तक कि आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, वीजा पॉलिसी को रिजीम को आप बिल्कुल लिबरलाइज नहीं करेंगे और नए आप एवेन्यूज रास्ते तलाश नहीं करेंगे ओवरलैंड ट्रेड के, ये रोलिंग स्टॉक जो है आप उसको बिल्कुल फ्री उसकी एक्सेस दें एक दूसरे को, तब जा करके ये लॉन्ग टर्म जो आपको बेनिफिट्स होंगे। लेकिन वो जो बात मैंने कही थी, यू ट्राई टू बिकम ए स्टेक होल्डर, and we need to trust each other also. Sheikh Saab, thank you so much for making it possible and giving such nice ideas. Zakir Saab, बहुत शुक्रिया, valuable ideas shared by you. Sheikh Saab, excellent as usual. Thank you so much for making it possible. अब तक के लिए इतना ही। कराची मरकज से अपने मेजबान खलील अहमद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हुए सदर मुमलकत ने कहा